الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز عصر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ رب العزت ہم گنہگاروں کو اس بابرکت مہینے رمضان المبارک اور قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حیرت انگیز اور عبرتناک واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب اللہ رب العزت کی ذات برکات نے اپنی شان کے لائق اور اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے اس انسان کو تخلیق فرمایا۔ کہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو مٹی اور گارے سے پیدا فرمایا، کہیں فرمایا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، کہیں فرمایا لٹکتی ہوئی چیز سے پیدا کیا۔ تو مختلف انداز ہیں اس انسان کی تخلیق کے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، مگر سارا کچھ بنا کے نا اللہ رب العزت کی رحمت پہ قربان جائیں۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو بڑی احسن شکل میں پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو عظمت اور بزرگی کا جو تاج ہے وہ ہم نے انسان کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ انسان کو اپنا مقصد تخلیق بھی سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس نے کتنا خوبصورت اس انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ فرمایا جب تمہارے رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میں اس مٹی سے انسان کو بناؤں گا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو بنا لوں، ٹھیک ٹھیک بناؤں گا میں اس کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرمایا کہ اے فرشتوں جب میں اس میں اپنی شان کے لائق اس میں روح پھونکوں نا تو تم کیا کرنا، تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا بے ساختہ۔ جب میں حکم کروں تمہیں تو کوئی چوں چرا نہیں کرنی، بس میرا حکم ہو سجدے کا حکم دوں تو سجدے میں گر جانا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو سجدہ ہے نا، سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، سجدہ کر اور میرے، وہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کو کروایا اللہ رب العزت کی ذات برکات نے فرشتوں سے، تعظیمی سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہ کیا، تو جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا اس نے نہیں کیا تو دوبارہ سجدہ کر دیا۔ وہ سجدہ دوبارہ شکرانے کا سجدہ تھا کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں رکھا ہے۔ تو ہوا بھی کچھ ایسے ہی، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور کوئی بھی فرشتہ باقی نہ رہا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور فرشتوں کی جماعت کا سردار تھا، روئے زمین پر چپے چپے پر سجدہ کرنے والا، اور بڑی اس کو عظمت اور بزرگی حاصل تھی، بڑا عبادت گزار۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کی باری آئی اس نے انکار کر دیا، الا ابلیس، انکار کرنے والا، استکبر وکان من الکافرین، اس نے کیوں انکار کیا، کیوں سجدہ نہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا استکبر، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، تو وہ کافروں میں سے تھا۔ یہ جو غرور ہوتا ہے نا بھائی میرے، یہ بڑی بری بیماری ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو پھنے کا سمجھنا، اور میں جناب بڑا ہوں، میرے برابر کا کوئی نہیں ہے، میرے جوڑ کا کسی فیلڈ میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، طرح طرح کے خیالات وساوس دل میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ غرور اور تکبر ہوتا ہے نا، یہ انسان کو مروا دیتا ہے۔ تکبر کرنا شیطانی وصف ہے، شیطان کی صفت ہے۔ اس کے مقابل میں عاجزی اور انکساری کر لینا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس کے انکار کرنے کی وجہ اس کی زبان سے بھی کہلوا دی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو فرمایا کہ قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، ان تسجد لما خلقت بیدی،
इंसान अपनी ना तख्लीक पर गौर कर। अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान से कि तुझे किस चीज़ ने मना किया सजदा करने से, हालांकि मैंने इसको तो अपने हाथ से बनाया था। मैंने इस इंसान को अपने हाथ से बनाया था, आदम को बेयदैया, अपने हाथों से बनाया था। अस्तकबरता, क्या तूने गरूर किया ना, तो मान तूने गरूर किया। अम कुंत मिनल आलीन, तू था ही मुतकब्बरों में से, तो गरूर करने वालों में से था। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पहले ही जानती थी कि यह गरूर करेगा, गरूर करने वालों में से था। अब उसने वजह बड़ी हैरान कुन बताई सजदा ना करने की। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे सजदा क्यों करूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मट्टी से बना है। अगर ये मैं आग से भी बना होता फिर भी मेरे बराबर का होता आदम, मगर ये तो मट्टी से बना गया। आग ऊपर को जाती है, मट्टी नीचे को जाती है, तो मैं बुलंदी की तरफ जाने वाला, पस्ती की तरफ जाने वाले को सजदा क्यों करूँ। काला अना खैरुम मिन्हु, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। तो अपने आप को दूसरों से बेहतर क्या है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। तो उसने कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन, कि मौला तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से पैदा किया। उसने एक वजह बयान की ना सजदा ना करने की, अल्लाह ताला ने वो वजह कबूल नहीं फरमाई, फ़ौरन इरशाद फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा, ऐ मरदूद निकल जा मेरी बारगाह से, फ़इन्नका रजीम, तू रांदा गया है। इब्लीस बड़ा खूबसूरत था, बड़ा चेहरे पर नूर था, इसके इबादत गुजार भी था ना, बड़ा नूर था इसके चेहरे पर। मगर जब ये फरमाया ना क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, तू रांदा गया है, उसकी शक्ल तब्दील हो गई, खौफनाक शक्ल बना दी गई उसकी। क्यों, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फरमाया कि बेशक तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत है। और लानत भी किसकी, लानती, मेरी लानत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेशक तुझ पर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक। अब उसने पता आगे से क्या किया, उसने कहा कि छूट मांगी उसने। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, बोला ऐ मेरे रब तो मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब उठाए जाएंगे लोग। अब उसने बड़ी गहरी चाल चली अपनी तरफ से। जब उसने कहा ना उठाए जाएंगे लोग, वो वक़्त है क़यामत के दिन दोबारा उठने का। उसने मोहलत इसलिए मांगी उठने के वक़्त तक कि जब अगर मुझे उठने के वक़्त तक मोहलत मिल गई तो फिर मुझ पर मौत नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं। उसने बड़ी गहरी चाल चली थी कि मुझे उस वक़्त तक मौला मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे, उस वक़्त तक क़यामत की निशानी भी पूरी हो चुकी होंगी, क़यामत भी पूरी हो चुकी होगी, लोग सारे मर भी चुके होंगे, और मैं उस वक़्त तक फिर ज़िंदा रहूँगा जब लोग उठाए जाएंगे। अब सामने अल्लाह ताला की ज़ात थी, उससे ज़्यादा अलीम बिज़ाति सदूर ज़ात और कौन सी है। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन फरमाया क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया ठीक है तुझे मोहलत है, तुझे मोहलत है। मगर साथ ही फरमा दिया अल्लाह ताला ने इला यौमिल वक्तिल मालूम, कि वो वक़्त जब क़यामत आएगी, क़यामत के हालात बनेंगे, उस वक़्त तक तुझे मोहलत है, मरना तूने भी है। तू जो चाल चलने लगा था ना कि मैं मरूंगा नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया मरना तुझे भी है। इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस वक़्त के दिन तक तुझे मोहलत है। अब सामने से फिर उसने एक और छूट मांग ली। उसने कहा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, उसने कहा मौला छूट तो मुझे दे दी है ना, मगर क्या मैं क्या करूँगा, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम। शैतान ने कहा परवरदिगार से कि मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, ये कोई छोटी बात नहीं है अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खा लेना। ये बहुत बड़ा काम करने का जब टारगेट सामने होता है ना बंदे के, फिर उस वक़्त बंदा इतनी बड़ी कसम खाता है। तो शैतान ने कहा कि मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, ये जो आदम है ना या इनकी जो आगे नस्ल चलेगी ना, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। मगर साथ ही उसे पता था कि मैं सबको गुमराह नहीं कर सकूंगा, सामने नबी था ना, नबी की फिर ज़ुर्रियत भी थी, नबी की आल भी थी, नबी की नस्ल पाक भी चलनी है सारी। तो फ़ौरन उसने कहा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मौला मैं सब तो को गुमराह तो कर दूंगा, मगर वो जो तेरे मुखलस बंदे होंगे, तेरे चुने हुए बंदे होंगे, तेरे बरगुज़ीदा बंदे होंगे, तेरे अंबिया होंगे, तेरे औलिया होंगे, तेरे महबूब के असहाब होंगे, तेरे महबूब के अहले बैत होंगे, जो तेरे चुने हुए बंदे होंगे, मौला मैं उनको गुमराह नहीं कर सकूंगा।
साथ ही उसने अपनी वो डेफिनेशन तब्दील कर ली। अल्लाह ताला ने फरमाया काला फल हक़ वल हक़ अक़ूल, फरमाया सच तो यही है और सच यही है जो मैं परवरदिगार कहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लअम्लअन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, शैतान से फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि बेशक मैं ज़रूर जहन्नम को भर दूंगा तुझसे और जो तेरी पैरवी करेंगे उनसे जहन्नम को भर दूंगा। जो शैतान की पैरवी करेगा वो शैतान के ही कैटेगरी में जाएगा। शैतान के मुतल्लिक़ एक आखिरी बात समाअत फरमा लें, बड़ी ईमान अफरोज़ बात है और इस बात पे गौर भी करना है और इस बात पे ना कोशिश करनी है कि हमने बचना भी है और हमने अमल भी करना है। ये जो शैतान होता है ना और शैतान के शतूंगड़े वगैरह इसकी ज़रूरत, इस सारी औलाद का शैतान की का एक मीटिंग भी होती है, उसकी बाकायदा कॉन्फ्रेंस होती है शैतानों की और उसके शतूंगड़ों की। उसमें सारे बड़े छोटे शैतान जो है ना वो सारे के सारे जमा हो जाते हैं और वो मीटिंग कहाँ होती है? वो समंदरों के ऊपर होती है, पानी के ऊपर होती है, खुश्की पर वो मीटिंग नहीं होती, समंदरों के ऊपर होती है। तो शैतान जब सारे शतूंगड़े इकट्ठे कर लेता है ना तो शैतान कहता है कि हाँ भाई तूने आज क्या किया? उसने कहा मैंने भाई से भाई को कत्ल करवा दिया। उसने कहा बैठ जा, तूने कोई काम नहीं किया। दूसरा कहता है, दूसरे से पूछा तूने आज क्या काम किया? उसने कहा मैंने बाप और बेटी के दरमियान लड़ाई करवा दी। उसने कहा खबरदार बैठ जा नीचे, तूने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। तीसरे को बुलाया, हाँ भाई तूने क्या किया? मैंने फलां दोस्तों के दरमियान एक यतीम बच्चे का मामला था, उसका हक ख़त्म करवा दिया यतीम का। खबरदार नीचे बैठ जा, तूने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। सब ने अपनी अपनी रिपोर्टें पेश की शैतान के सामने। तो शैतान ने सबको बिठा दिया, एक नहायत बदसूरत सा उसका शतूंगड़ा खड़ा हो गया। उससे पूछा तू क्या करके आया? उसने कहा मैंने भी कोई इतना बड़ा काम तो नहीं किया, मगर मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी है। मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी। शैतान खड़ा हो गया, इस्तकबाल किया उसका, जफ्फी डाली उसको और कहा शाबाश, असल काम तो तू करके आया है। तूने एक मियाँ और एक बीवी के दरमियान खानदान में लड़ाई क्या डलवाई? तूने तो घरों के घर ही उजाड़ दिए। अब कोई उधर जाएगा कोई उधर जाएगा, बात तलाक तक जाएगी, नौबत बच्चों के खर्चे तक जाएगी, दो फरीक उधर बनेंगे दो फरीक उधर बनेंगे, आधी बिरादरी उधर फट जाएगी आधी बिरादरी उधर चली जाएगी। असल काम तो तू करके आया है। तूने मियाँ और बीवी के दरमियान में लड़ाई करवा कर लोगों को इतना गुमराह कर दिया कि उनकी कई नस्लें बिगड़ जाएंगी। और होता भी ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, मियाँ बीवी की लड़ाई है ना, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। इसलिए अगर किसी का बस चले, मेरा आपका किसी का भी अगर बस चले और कोई मामला सा सामने आ जाए कि मियाँ और बीवी की के दरमियान सुलह हो, लड़ाई का मामला हो ना, तो 100% कोशिश करें कि उनके दरमियान सुलह हो जाए, उनका घर आबाद हो जाए। उनका घर आबाद हो जाएगा, उधर शैतानी मंसूबे भी खाक में मिल जाएंगे, इधर रब की रहमत भी जोश में आएगी और आपके सुलह करवाने की वजह से, आपके पर्दा पोशी करने की वजह से अल्लाह ताला आपके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।